Morning, class 12th. Hope you all are fine. Today we will discuss about our chapter number 4, Dream Children, our review. Today we will discuss about the summary of this chapter. चलिए हम देख लेते हैं इसके चैप्टर में। हम ऑथर के बारे में। हमारे ऑथर कौन है? चार्लीज लैम्ब. चार्लीज लैम्ब 1775 1834 ही इज अ फेमस एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश. इनको क्या बोला जाता था? इनको प्रिंस ऑफ इंग्लिश बोला था. Essayist, after studying for 7 years of Christ Hospital, where the friendship of Coleridge, Lamb obtained clerkship in South Sea House, but soon left his job and joined the East India Company, where work till his retirement. Today, Lamb is remembered for his excellent autobiographical essay. चलिए हम आज डिस्कस करते हैं इनके बारे में. इनके जो ड्रीम चिल्ड्रन मतलब जो ड्रीम इनके बायोग्राफिकल ऐसे के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. दिस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ राइटर couldn't have children are usually found to listening to this story of their ancestors. चलिए मैं आपको सबसे पहले इसकी समरी मैं आपको ये चैप्टर पूरा समरी में एक्सप्लेन करना चाहूँगी, क्योंकि समरी समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन आंसर्स भी आ जाएंगे, और समरी आ गई तो पूरे चैप्टर समझ आ जाएगा, तो इजीली आप क्वेश्चन आंसर्स भी लिख पाएंगे और इस चैप्टर को आप इजीली समझ पाएंगे. चलिए मैं पहले पूरी समरी बता देती हूँ. दिस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ विच राइटर couldn't have children are usually found listening to their story ancestor about their grandmother Field, who lived in a great house on Norfolk. The writer continues to say interesting fact about Field was in fact not mistress of great house but just a caretaker of it. Still she alive with dignity. When she died, funeral was attended by conquerors for all people, and some of the gently to neighborhood. They came for many miles to show their respect for her memory. Further, the writer said the Field was upright and graceful. She was a esteemed dancer in seemed strength in youth, but she suffered cancer. But she suffered from the deadly disease of which put her in pain, but she was still upright, as she was a good and religious. Field used to sleep by herself in a lone chamber of the great lone house. She usually believed that two infants used to glide up and down the greatest staircase near where they slept during midnight. The writer was scared for her never say infant, however, filled all the children with her in the house during holidays. The writer enjoyed the loneliness. Even there, he was always alone himself. Even there in the house of the grandmother, the writer told John and Elias, the two children who loved taking much interest in the story, that the grandmother loved all was very but great attention or to John was very handsome in spirit youth. He loved the great house and but older than the writer. It was because the writer was lame legend and couldn't walk long. Later he himself became lame and was great pain. His painful death haunted the writer for long. The writer missed him much, for he had loved him much. He missed his brother kindness, closeness, and wished to be alive again to quarreling with him. The children tried to listen the story about a pretty dead mother. The writer continued that he curated where Alice Vian, but he explained how he was denied of the marriage, what the pain did he suffer from. Children were emotional, they thought, and realized that they were not real children, but the writer and Alice Vian. They are nearly dreams. The writer was awake and was none around of him, no John और no Alice. ये थी क्या हमारी चैप्टर की समरी. अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर में है क्या. ये क्या है? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ड्रीम लाइफ. ये एक सीक्वेंस है किसका? ड्रीम लाइफ का. किस ड्रीम लाइफ का जो राइटर हैं, जो कभी उनका जो ड्रीम है वो कभी पूरा नहीं हो सका, जो सिर्फ उनको सोचते थे, इमेजिन करते थे. वो मतलब एंसेस्टर्स मतलब होते हैं पूर्वज के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे. क्या थे? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे किनके बारे में जानने के? अपने एंसेस्टर्स से. राइटर जो थे हमारे, वो बच्चे वो जो इमेजिनेशन कर रहे थे कि उसके पास आए और अपनी दादी फील्ड के बारे में जानना चाहें, जो नॉरफॉल्क के बड़े से घर में रहती थी. जो राइटर थे मज़ेदार बातों के साथ फील्ड के बारे में सुनाना शुरू कर दिया कि फील्ड जो उनने अपनी फील्ड के बारे में बहुत सारी बातें सुनाना शुरू कर. क्या
कि वो बहुत महान लेडी थी जिससे सभी लोग प्यार और इज्जत देते थे, मतलब उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे और लव देते थे, है ना। दरअसल वह उस विशाल घर की मालकिन थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा बड़े घर के नॉर्थ में जो एक बहुत बड़ा घर था उधर की कौन थी, वो थी ओनर थी, है ना। किसके, बहुत बड़े घर में जो नॉर्थ का घर था उनकी वहाँ की क्या थी, ओनर सी, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वही मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठान लोग बोल सकते हैं, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा फेमस लोग होते हैं वो थी वहाँ की। देन जब उनकी डेथ होती है तो वहाँ पे उनके जो अंतिम संस्कार में काफ़ी लोग शामिल होते हैं। कौन से लोग, मीडियम फैमिली वाले लोग भी और हाई प्रोफाइल लोग भी जहाँ आते हैं उनके अंतिम संस्कार में। देन राइटर ने बताया कि वो बहुत कैसे नेचर की थी, बहुत ज़्यादा कोमल, शांत, अच्छे स्वभाव की लेडी थी। वहाँ मतलब उनका जो बीस्ट अपराइट एंड ग्रेसफुल, शी वॉज स्टीम डांसर इन यूथ। जब वो अपनी जवानी में क्या थी, एक यूथ डांसर थी। उसके बाद उनको एक कैंसर की बहुत ज़्यादा भयानक बीमारी के कारण उनकी बीमारी थी और उसका बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेन था। फिर भी उन्होंने सह दी नहीं, बट उन्होंने कभी दिखाया नहीं अपने फेस पे कि उनको इतनी ज़्यादा तकलीफ थी, और फिर भी वो अपने सारे धार्मिक कार्यों में और अच्छाइयों में लगी रही। फिर क्या होता है, फील्ड यूज टू स्लीप, फील्ड बड़े से घर में अकेले कमरे में सोती थी। वो जो उनका इतना बड़ा घर था नॉर्फोल्क में, वह कहाँ पे सोती थी, एक बड़े से कमरे में सोती थी। उसे शाम मतलब मिडनाइट में ऐसा लगता था कि दो बच्चे जो हैं हवा में लहराते हुए उस सीढ़ी से नीचे पर आते हैं, जहाँ वो सोती थी वहाँ पे आ जाते हैं। लेखक मतलब जो राइटर थे हमारे, जिनको हम बोलते हैं लेखक, और जो राइटर को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता था, वो बहुत ज़्यादा स्केर्ड हो जाते थे, है ना। क्योंकि उन्हें क्यों लगता था डर, क्योंकि उनको वो दिखाई नहीं देते थे। वो चिल्ड्रन को देखने जाते थे पर उनको वो दिखाई नहीं देते थे। बट जो फील्ड थी, तो है ना, जो फील्ड थी वो जो अपने मतलब अपने पोतों के साथ वो क्या थी, बहुत खुश थी, और उनके साथ कैसा नेचर बिहेवियर था उनका, बहुत अच्छा था। जो उनकी वेकेशंस होती थी वो सभी बच्चों को एक साथ उस बड़े घर में देखना उनका ड्रीम था, कि वो जो सभी बच्चे, उनके सारे जो वेकेशंस होते हैं, समर वेकेशंस, वो सारे बच्चे वहाँ पे उस बड़े से घर में आ जाएं। जो राइटर थे वो फिर भी अपने अकेलेपन वहाँ भी खोए रहते थे, मतलब जो राइटर थे वहाँ भी वो अपने अकेलेपन में उस बड़े से घर में भी खोए रहते थे, है ना। वहाँ जो उनकी दादी माँ थी वहाँ भी उसके घर में वो अकेले अकेले ही होते थे। देन फिर इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, जो सबसे पोएट ने बताया इस चैप्टर में कि जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं वो आते हैं द राइटर से जॉन एंड एलाइज। जो दो बच्चे आए हैं, कौन, जॉन और एलाइज, उसकी कहानी में मतलब जो स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्रिएट करेंगे, है ना। जो दादी थी वो सबसे ज़्यादा किसको प्यार करती थी, मतलब जो उनका स्पेशल अटेंशन था वो किसको था, जॉन को। जॉन कैसा था, जॉन बहुत ही सुंदर और उत्साही पर्सन था, मतलब वो बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड स्पिरिट यूथ था, है ना। घर को और उनको क्या पसंद था, घर तो बहुत पसंद था उनको, पर उससे ज़्यादा वो बगीचे की देखभाल भी करते थे, मतलब उनकी केयरिंग भी करते थे। वह मतलब जो राइटर हैं वो उनको अपनी पीठ पर बिठाल कर मतलब यहाँ से वहाँ घुमाया करते थे। क्यों करती थी वो ऐसा, इसलिए करती थी क्योंकि जो हमारे क्योंकि जो राइटर थे उनका एक पाँव लंगड़ा था और ज़्यादा दूर चल नहीं पाते थे, मतलब वो उनका एक पैर खराब था तो वो ज़्यादा दूर चल नहीं पाते थे। जो राइटर थे उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा, उनको इनकी कमी महसूस होती थी, वो बहुत ज़्यादा उनको मिस करते थे कि क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ याद आती थी कि उनकी जो दर्दनाक मौत हुई थी, जो उनके बड़े भाई मतलब जो सोचते हैं तो उनकी दर्दनाक मौत हुई थी वो उसको महसूस करते हैं, है ना। और फिर क्या उनको वो करते थे तो वो उनको याद आता था कि फिर से वो सोचते थे कि काश वो फिर से जिंदा हो जाएं और उनसे वो झगड़ा कर लें और उनसे वो फिर से वैसे ही वो उनको बिठाल के घुमा दें। देन फिर क्या होता है, द चिल्ड्रन ट्राई टू लिसन द स्टोरीज ऑफ द अबाउट प्रीटी लेडी दैट डेड मदर। जो बच्चे रहते हैं उनको सुंदर माँ की कहानी सुनने के लिए शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं कि मुझे जो हमारे राइटर हैं उन्होंने बताया कि एलाइस वियन से मंगनी तय की, लेकिन
जो हमारे राइटर हैं उनकी शादी किससे फाइनल की, एलाइस से, है ना। उनने बताया कि उनने शादी से मना कर दिया, उनने बोल दिया कि नहीं। क्यों? उसे कैसे दर्द से गुजरना, मतलब जो दर्द से वो गुजर रही थी, तो बच्चे मतलब वो बहुत ज़्यादा सेंटी हो गए, जो बच्चे थे वो बहुत सेंटी हो गए। उन्होंने सोचा और महसूस किया कि वे लेखक और एलाइस वीएन के बच्चे नहीं थे। उनको रियलाइज़ हुआ कि जो एलाइस और राइटर हैं जो उनके बच्चे नहीं थे। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो सारा हमने सीक्वेंस अभी तक रीड किया है, जो हमने सारी चीज़ें समझी हैं, वो क्या है, ये सिर्फ एक ड्रीम है। क्या था? ये एक सपना था। कैसे, है ना, क्या था? एक सपना था। फिर उसके बाद क्या होता है, एलाइस दे वर नियरली ड्रीम्स, वो सोचते हैं कि ये सारा कुछ देन था। द राइटर वॉज अवेक्ड एंड देयर वॉज नोन अराउंड हिम जॉन और एलाइस। जो हमारे राइटर है उनकी नींद खुलती है और वहाँ कोई भी नहीं होता है। जब उनकी नींद खुलती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है, ना एलाइस ना जॉन। ये सारी क्या थी, जो हमारे पोएट थी उनके एक ड्रीम सीक्वेंस था, जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। स्टूडेंट, आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिए। आपको इसके क्वेश्चन आंसर PDF के थ्रू भिजवा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम।